ہی چینج کر لوگی نا اف اس شخص کو ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ اس سوٹ میں آرام دینی تھی۔ بیٹا ساتھ والی رسوئی میں کر لو کپڑے چینج، اگر کر لوگی تو۔ وہ عورت چرپائی پہ بیٹھی کمزور سراپے والی لڑکی سے محبت سے مخاطب تھی۔ آنٹی کر لوں گی، آپ مجھے بس رسوائی رسائی تک پہنچا دیں۔ سر جھکاتی ہاتھ کی انگلیاں موڑتی ہوئی وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، دوسری چائے کی پیالی پیتا سردار بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے کیسے زرد رنگ اختیار کر گیا تھا، ہونٹ کی سوجن بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ سردار غزان نے ہونٹوں کو سختی سے بھیجا اس کی نقیف حالت پر۔ ہیربا مشکل اس عورت کے سہارے چلتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہنام باہر گاڑی میں تھا، ایک بار اندر جھانکا، اپنی متجس فطرت کے سبب اور اچھی خاصی بےعزتی بھی کروا چکا تھا۔ خود تو اندر چائے پہ چائے پی رہے ہیں اور ہمیں سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، انہیں بس وہ چڑیل ہی دکھتی ہے۔ وہ منہ بسر کر خادم سے بول رہا تھا، جبکہ خادم نے سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد کچھ نہ کہا۔ سردار کے خلاف بولنے والے کا وہ حشر نشر کر دیتا تھا، لیکن یہاں ان کا بھائی نما کزن تھا جو انہیں بھی عزیز بہت تھا۔ شکر ہے آپ ہی سے بات ہوئی، وہ ٹھیک ہے؟ کہہ رہی تھی کل موبائل کہیں گر گیا تھا، ملا نہیں، ابھی شہنام کے نمبر پہ میں نے کال کی تھی تو بات ہوئی، لیکن ایک بات پریشانی والی ہے، آپ ہی کی آواز بہت بھاری تھی، ایسا لگ رہا جیسے وہ بہت مشکل سے بول رہی ہوں۔ ناشتہ کرتا وہ تفصیل سے میرینا کو بات کر رہا تھا جو سب سادے سوٹ میں بالوں کو اس پہ معمول کھلے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ وہی بناتا تھا، بس چائے مہرینا کے ذمے آ چکی تھی۔ وہ صدا کی کام چور لڑکی چائے بھی ناک منہ چڑھاتے ہوئے بناتی تھی۔ میری کوئی زندگی ہے نہ کوئی ایڈونچر ہے نہ کوئی موج مستی ہے، سارا دن میں گھر پر بیکار چیز کی طرح پڑی رہتی ہوں، میں نہیں جانتی مجھے گھومنے پھرنے کی اجازت لے کر دو سردار سے، ورنہ چڑیل بننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہاں پاس میں ہی پارک ہے، میں وہاں روز جایا کروں گی، بچوں کے ساتھ کھیلا کروں گی، جلدی آ جایا کروں گی، پڑھائی میں دل نہیں لگتا میرا، اور ہاں 2 گھنٹے پاس میں ہی کمپیوٹر ڈیزائننگ کا کورس کروایا جاتا ہے، مجھے وہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اچانک ہی بولنا شروع ہو گئی تھی اور پھر بولتی ہی گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھی جا رہا تھا، تو آپ یہاں سب گھوم پھر کر دیکھ چکی ہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کب رکھتا خاصے تیکھے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ منہ سکڑے اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ تم مجھے اکیڈمی میں داخلہ لے کر دو گے یا نہیں؟ وہ اچانک ہی کھڑی ہوتی پوچھ رہی تھی۔ لے کر دے رہا ہوں مس، لیکن پارک جانے کا خیال دل سے نکال دیجیے گا، میں یہاں کے لوگوں کو خاص جانتا نہیں ہوں، آپ کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے، شام کو تیار رہیے گا، کروا دوں گا داخلہ۔ وہ بیگ پکڑتا سنجیدگی سے بولتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ اس نے سر جھٹک کر چائے کا کپ منہ سے دوبارہ لگوایا تھا۔ مینا کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتا تھا بھلا، وہ اب کے مسکرائی تھی، خاصی مشکوک مسکراہٹ تھی میڈم کی۔ وہ سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس جانے کے لیے تیار تھی، جبکہ وہ شاندار سا شخص ٹوٹی پھوٹی چارپائی پہ بیٹھا اس عورت سے کوئی بات کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تو وہ سرائے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، ہیر کو شاید حیران پہ حیران کر کے مارنا تھا اس نے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس عورت سے الوداعی اجازت چاہ رہا تھا، بیٹا زندگی رہے تو اسے لے کر آنا، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں انتظار کروں گی تم دونوں کا۔ وہ عورت ایک ڈبہ ہیر کی طرف بڑھاتی ہوئی سردار سے مخاطب تھی، ضرور آئیں گے اور کچھ دن رہیں گے بھی، ابھی ہمیں اجازت ہے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا ہیر کو لے کر باہر بڑھا تھا، گاڑیاں نیچے سڑک پر تھی کہ گاڑیاں اندر جنگل میں نہیں آ سکتی تھی۔ ہیر نے وہ سرخ رنگ کا ڈبہ جس پر سفید رنگ کا ڈھکن تھا پکڑ رکھا تھا اور بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ یہ تم ایزی سے چل لو گی ہیر، تم ایزی سے چل لو گی یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سر جھکاتی ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، اس کی ٹانگ میں واقعی بہت درد ہو رہا تھا چلنے سے۔ اوکے کہتے ہی وہ نازک سی لڑکی کو ایک لمحے میں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ہیر کی جان ایک دم سے لبوں پر آئی تھی اس افتاد پر۔ خزان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے تھا تو دوسرا کندھے کے نیچے تھا اور وہ آرام سے چلنے لگا تھا بنا ہیر کے شوق سے کھلے ہوئے منہ پر دھیان دیے۔ وہ قسم رہی تھی اور پریشان بھی تھی، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ وہ اسے گود میں اٹھا لے، وہ بچی تھوڑا نہ تھی۔ ہو جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ زرد گلی رنگت میں اب کہیں کہیں سرخ سی لہریں دوڑنے لگی تھی۔ وہ اپنوں نوکیلے پتھروں سے نیچے اترنے لگا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا پیچھے کھڑے ان دونوں کو محبت سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ جانی بیٹا چلو اندر، وہ بیٹے کو کھینچ کر اندر لے گئی، جبکہ جان نے پلٹ کر ضرور اپنی پسندیدہ جوڑی کو دیکھا تھا۔
सुबह 10 बजे का वक्त था। परिंदों की चहचहाट, रंग बिरंगे आगे जंगली फूल, फूलों से लदी टहनियाँ। हीर के लिए ये मंजर बहुत दिल फरेब होता अगर वो उस मसबूत शख्स की गिरफ्त में न होती। बात सुने, वो धीमे लहजे में बमुश्किल बोल पाई थी। कहिए, वो नहर के किनारे चलता बड़े सुकून से बोला था। मेरी टांग का दर्द एकदम से ठीक हो गया है, शायद दवा का असर है। आप मुझे उतार दें, मैं अब चल सकती हूँ। सर झुकाकर बोलती लड़की का लहजा लड़झड़ा रहा था, आंखें मीच रही थी इसने। इसकी एक हाथ में डिब्बा था तो दूसरे सीने से चिपका रखा था। सरदार ने सर झुकाकर इसे देखा, आंखें सख्ती से नीचे सुर्ख पड़ते चेहरे से बड़ी नाजुक हालत में थी। ओके, कहते हुए उसे जमीन पर एहतियात से खड़ा कर चुका था। हिर ने नीचे आंखें डरते डरते खोली थी। वो इसे नई नहर के उछलते कूदते पानी को देख रहा था। शुक्र था पानी बहाव वाला था, अगर पानी में ठहराव होता तो वो डूब जाती। इसे कौन सा तैरना आता था। इसी उछलते कूदते पानी ने इसकी हीर की जान बचाई थी। वो तशक्कुर से पानी को देखता इसे चलने का इशारा कर रहा था। चीप कहते हुए चलने के लिए हिम्मत मुस्तफा करने लगी थी। ये चल क्यों नहीं रही, वो बेहद संजीदा था। चल रही हूँ, कहती ही वो टांग घसीट कर चलने लगी थी। चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात रकम होने लगे थे, लेकिन अब वो रुक नहीं सकती थी। वो उसकी चाल को बखौर देखता हुआ चल रहा था और से एक कदम पीछे था। वो हिचकिचाकर इसका मजबूत हाथ थाम गई। अब वो और कितना खुद पर जब्त करती। इसे चौंक कर अपने हाथ को देखा, चंद नरम हाथ की गिरफ्त खासी सख्त थी। वो सड़क पर आ चुके थे, जबकि शनाम सराय से गाड़ी के अंदर बैठा था। इन सबके सामने और मार या डांट खाने का खतरा मोल नहीं वो सामने वो और मार या डांट का खाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। बैठो। गाड़ी का डोर खोल के से एहतियात से हीर को बिठाया। क्या नसीब था इस लड़की का, जिसके लिए गार्ड्स भाग कर डोर खोलते थे। इसके लिए वो मर्द दरवाज़ा खोले खड़ा था। फिर हीर कहती, मेरी किस्मत अच्छी नहीं पड़ी, ना समझ थी, आजमाइश थी, तो फिर अल्लाह अपने लोगों पर ही लाया करता है ना। कमर पे गरम सा एहसास, कंधे पे नरम लम्स। हीर की तो हवास ही काबू में नहीं आ रही थी इस वक्त। वो आंखें मीचे इन पलों से निकलने के लिए मरी जा रही थी। सुर्ख डिब्बा इसकी गोद में था, हाथों पे दस्ताने पहने वो शर्म से चेहरा झुकाए बैठी थी। नो डैड, रास्ते में हूँ, बाय रोड ही आऊँगा। हीर प्लेन में कंफर्टेबल फील नहीं करती। आप फिक्र न करें, रात को पहुँच जाऊँगा। गार्ड सब साथ है, डोंट वरी। शायद हर बात बाप से करने की इसकी आदत थी। बाप से बात करता वो 2 बार चीखा था, जिस पर हीर ने फिक्रमंदी से इसके कंधे को देखा था। नज़र बस यहीं तक ही उठ सकी थी। नो डैड, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा फ्लू हो गया है। अभी रखता हूँ फ़ोन, बाद में बात होती है, अल्लाह हाफिज़। कहते ही इसने फ़ोन रख दिया। अब शायद तैमूर साहब का लेक्चर शुरू हो चुका था। ये तबीयत बेहतर है ना, अगर नींद आ रही तो सीट पीछे कर दो। उफ, इतना नरम लहजाई शख्स इंसान था या कोई हीर के लिए फरिश्ता कहीं से आ गया था, वो जान नहीं सकी थी। नहीं, अभी नींद नहीं आ रही, वो धीमे से रो में बोली थी, जिस पर इसने सामने से नजरें हटाकर झुके सर वाली लड़की को नरम निगाहों से देखा था। फिर मुस्कुराया। इसके आधे सर पर टिकी चादर इसे बहुत पसंद थी। चादर से झांकती शफाफ मांग आज कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी थी, शायद सवारा नहीं किया था। ये डिब्बे में क्या है, वो डिब्बे को देखते हुए पूछ रहा था। पता नहीं, शायद कुछ खाने का सामान हो, वो बोली थी। होठ की सूजन पहले से कम थी, लेकिन दर्द था जो बोलने से होता था। खोलो, वो इजाज़त चाह रही थी। वो खिड़की से रुख हटाता हुआ बोला। खादिम अगली सीट पर था। वो तो अपनी सजा को देख देख कर हैरान था। आखिर सदा खजान का ये कौन सा रूप था जो सिर्फ इस लड़की के सामने ही देखने को नजर आता था, वरना वो बहुत सख्त था। ज़रा सी गलती पर इन्हें झाड़ कर रख देता। किसी काम की देरी इसे पसंद नहीं थी। सादा बोलने वाले लोग इसे पसंद नहीं थे, जिसका वो इनके सामने इजहार भी कर देता था। अगला बंदा बेचारा शर्मिंदा सा होकर रह जाता था। हिन ने सफ़ेद ढक्कन डिब्बे से हटाया और हल्की सी महक गाड़ी के गर्म माहौल में फैली थी। घी से लथड़े पराठे और साथ आम मिर्च का फ्रेश सा अचार था। इसकी भूख अचानक ही चमक उठी थी। 3 पराठे थे। इसे मालूम था सदा खजान को ऐसे देसी खाने पसंद नहीं थे। इतना तो वो जान ही गई थी ने। खादिम भाई, खाएंगे आप? वो पराठों वाला डिब्बा इनकी तरफ बढ़ाती हुई पूछ रही थी। जी, थोड़ा सा चख लेते हैं, मैं और दिलदार। वो एक पराठा बेतकल्लुफ़ी से उठाता हुआ बोला था। आप एक और ले लेना, ड्राइवर भाई के लिए भी। वो एक पराठा इनकी तरफ बढ़ाती हुई बोली। दिलदार का भी इसने उठा लिया था, अब एक पराठा बचा था। इसने एक छोटा सा लुक़मा लेकर मुंह में रखा और आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगी थी। वेयर इज़ माय पराठा, वो संजीदगी से पूछ रहा था।
जबकि हीर ने पहली बार हैरत से देखा, जो संजीदगी से इसे देख रहा था। ऊँची लंबी नाक सुर्ख थी इसकी आज। लेकिन आप तो ये नहीं खाते ना? वो हैरत से पूछ रही थी। लेकिन आज दिल कर रहा है मेरा और भूख भी है। खादिम ने हल्की मुस्कान से अपने सरदार की बात सुनी थी, तो इन्हें अपनी बीवी के साथ पराठा शेयर करना था शायद। आप खा लें फिर। वो पराठा इसकी तरफ बढ़ा रही थी। नहीं, मैं बस थोड़ा सा लूँगा। कहते इसने थोड़ा सा पराठा तोड़ा था। इन्हें हैरानगी से इन्हें पराठा खाते देखा था। नॉट अ बैड। वो लुक़मा लेता निगलता हुआ बोला था, तभी वो ज़ोरों से चीखा था और और हीर की जान पर बनी थी। उफ़! इन्हें क्यों ज़ुकाम लग गया? मुझे लगता है ना इनके हिस्से का, मुझे ना लग जाता ना इनके हिस्से का। वो परेशानी से बड़बड़ाई थी। बेड पे बैठी दोनों हाथ घुटनों के गिर्द बांधे वो कब से रो रही थी। आखिर क्यों सरदार, क्यों मैं आपको नज़र नहीं आती? वो ना रुतबे और हैसियत से मुझसे बढ़तर है, ना हुस्न में। फिर क्यों वो लड़की आपके लिए ज़्यादा है? आखिर मैं ऐसा क्या करूँ आपकी नज़र मुझ पर ठहरे? नहीं सदा, शाइनी हार नहीं मानेगी। आखिर क्यों मानूँ मैं हार? आप मेरे मंगेतर थे, आप मेरे कज़न थे। काश वो लड़की आपकी ज़िंदगी में ना आती, तो आज मैं आपकी बीवी होती। आपने इसे मुझ पर फ़ौक़ियत देकर अच्छा नहीं किया। सदा ग़ज़ान तैमूर। वो रोते हुए शिद्दत से हलक फाड़ती हुई चिल्लाई थी, शाइनी आपको कभी इसका नहीं होने देगी। आखिर कब तक इसे बचाएंगे मुझसे? वो इस बार नफरत से हौले से बड़बड़ाई थी। रास्ते में फूड पॉइंट रेस्टोरेंट में इसने के सारे गार्ड्स को खाना खिलवाया था। ये गाड़ी में ही थी जबकि चुपचाता शनाम इसकी गाड़ी के नज़दीक आ गया था। हाय चुड़ैल, कैसी हो? मुझे 2 थप्पड़ पड़वा कर पड़ गई ठंडक दिल में। वो उसी गाड़ी की खिड़की में आता मनमनाया था। हिर ने हैरत से इसे देखा, फिर मुस्कुराई थी। ऐसी वैसी ठंडक नहीं पड़ी, तो तुम्हें तो और 2-3 थप्पड़ पड़वा कर ही मज़ा आएगा मुझे। वो बमुश्किल मसनूई गुस्से से बोली थी। ऐसा था फिर ऐसा ही सही। तुम खुद गिरी थी, मैंने कोई धक्का तो नहीं दिया था चुड़ैल रानी को। मुझे चुड़ैल कहा तो शिकायत कर दूँगी तुम्हारी। वो गुस्से हुई थी। अब तुम जो हो वही हो, वही तो बुलाऊँगा। वो चिल्लाया था। फिर से कहो ज़रा जो अभी कहा है। पीछे से उसके कंधे पर अचानक ही हाथ पड़ा था। तुम परियों की रानी हो तो रानी कहूँगा ना, चुड़ैल थोड़ी ना कहूँगा। अब आप ही बताएँ सदागतान, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? वो पहले तो परेशान हुआ था, फिर फ़र्क होते चेहरे से मिनमिनाया था। चलो अंदर चलकर लंच करो और आप फ़िज़ूल बकवास मत किया करो। वो गुस्से से बोतल से जाने का इशारा कर गया था, जबकि वो जाते-जाते भी इसे चोरी से घूरना नहीं भूला था। जबकि वो मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त किए हुए थी। कुछ खाना है? शफ़क़ भरा लहज़ा हीर के 400 गूंजा था। सिर्फ़ चाय, वो बोली थी। इसने किसी को इशारा किया था। 3-4 मिनट में एक लड़का नफ़ीस से कप्स में चाय लेकर आया था। ये चाय पीती बाहर खड़े सरदार को चोरी-चोरी देख लेती थी, जो एक हाथ से चाय का कप थामे, तो दूसरे से फ़ोन कान से लगाए किसी से टहलता हुआ बात कर रहा था। ही को अचानक ही अपने वजूद के गिर्द इसकी मज़बूत जानलेवा गिरफ्त महसूस हुई थी। पेशानी पर ठंडे होठों का लम्स। उफ़! ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा-वैसा क्यों सोच रही हूँ? वो परेशान और शर्मिंदा हुई थी खुद से। वो बाकी का सारा रास्ता सोती आई थी। ग़ज़ान तैमूर ने इसकी सीट पीछे की तरफ कर दी, तो वो इज़ी से सोती रही। डिनर के टाइम वो लोग घर पहुँचे थे, लेकिन ग़ज़ान ने इसे इस महल को पहुँचा कर उठाया था। शनाम भी साथ ही था। वो मुँह बुसेरे हुए था, जिसकी सरदार ख़ज़ान को ज़रा परवाह नहीं थी। आखिर इसी की गलती थी तो इतनी सज़ा तो बनती थी ना। नूरा मेन हॉल में पहुँचते ही इसने ख़ास मुलाज़िमा को पुकारा था, जो किसी बोतल जिन की तरह पल में हाज़िर हुई थी। सब लोग हैरानगी से हीर का चोटों से भरा चेहरा देख रहे थे, लेकिन पूछा किसी ने नहीं। तैमूर साहब और सईद खानम दावत पर थे, इसलिए वो नहीं थे। वहाँ जब मेहदिया दौड़ कर हीर के पास आती, नूरा से पहले इसे थाम चुकी थी। सरदार भाई, क्या हुआ है सरदार भाभी को? वो परेशानी से कमज़ोर लड़की को देखती सरदार ग़ज़ान से मुख़ातिब थी, जबकि इन दोनों ने एक ही दम से मेहदिया को देखा। इसने नए रुतबे से मुतारिफ़ करवाने वाली वही लड़की थी, जबकि थोड़े पीछे खड़ा शहनाम ने दिलचस्पी से इस खूबसूरत सी लड़की को देखा था। हीर का छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था, तुम इसे कमरे में ले जाओ और खाना खिला दो, तब तक डॉक्टर भी पहुँच जाएँगे। माथे की कनपट्टी दबाता वो शहनाम को पीछे आने का इशारा करता अपने निचले वाले रूम की तरफ बढ़ा था, जबकि शहनाम ने चोरी से पीछे मुड़कर इस लड़की को देखा था जो एहतियात से हीर को सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी। डॉक्टर ने इसके ज़ख्म पे बैंडेज कर दी थी, 2 ताकतवर इंजेक्शन भी लगा दिए थे और वो दवाओं के ज़रिए असर शाम से सोती रही थी। फिर इसकी आँख रात के पिछले पहर खुली थी, चेहरा पसीने से तर लिए उठी थी। इसका दिल घबराने लगा था कि दवाएँ ज़्यादा गर्म थी और इसने खाया कुछ ख़ास नहीं था।
कंबल परे हटाकर वो उठती हुई बाहर निकल आई थी। टाँग में भी दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए वो नंगे पाँव चिकने फर्श पर आसानी से चल रही थी। "कहाँ जा रही हो?" पीछे से आती रोबदार आवाज़ इसकी कदम ज़मीन से जमा गई थी। ये आवाज़ तो तैमूर खानम की थी। वो पीछे पलटी नहीं थी, बस सहमे सर चेहरे से सर झुका गए। "रात के इस वक़्त कहाँ जा रही हो?" वो संजीदगी से इसके करीब आते हुए पूछ रहे थे। किचन में इसे सच ही बोला था। "क्यों?" इसके झुके सर को देखते हुए पूछ रहे थे। हीर के हलक में गोला सा बनने लगा था। "भूख लगी है।" भराए हुए लहजे में उँगलियाँ चटकाते हुए बोली थी। "तो इसमें रोने वाली क्या बात है? और उँगलियाँ मत चटकाओ, बुरी आदत है ये।" हीर ने हैरत से इनका नरम रवैया सुना था, फिर इन्हें देखा जो इसे ही देख रहे थे। पहले की तरह आँखों में गुस्सा व नफ़रत नहीं थी, बल्कि नरम सा गोशा ही रज़ा को महसूस हुआ था। वो इसके मासूम चोटों पर भरे चेहरे को आज पहली बार ताज्जुब से देख रहे थे। "जाओ फ्रिज में खाना होगा, इसे ओवन में गरम करके खा लो। हाँ, और हाँ, रात को खा कर सोया करें।" कहते ही नरम निगाहों से इसे देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे, जबकि वो दंग नज़रों से पलटकर इनकी पुश्त देखने लगी थी। "क्या मैं ख्वाब में हूँ?" जल्दी से बाजू पे चुटकी काटी, लेकिन नहीं, ये तो हकीकत ही थी। नहीं, ये मेरा वहम होगा फिर। वो अभी भी अपनी नज़रों का वहम समझ रही थी। "हीर, यहाँ क्या कर रही हो?" वो भी इसी साइड से आ रहा था जहाँ से तैमूर साहब आए थे। शायद वो दोनों कहीं साथ गए थे। वो चौंक कर सामने से आते दिलकश शख्स को देखने लगी थी। वो रफ़्ती सफ़ेद टी-शर्ट जिसके स्लीव्स बहुत हाफ़ थे, नीचे ब्राउन पैंट पहने, दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए नरमी से इस्तफ़ार कर रहा था। "भूख का कहा तो डाँटेंगे, रात को खाना खाकर सोया करो।" वो वो ऐसे ही बस नींद आ रही थी, बाहर चली आई, "अब दूँगी मैं।" वो कहते ही पलट गई थी, इनका सामना करने के लिए इसमें हिम्मत नापैद थी। "रुको हीर!" इसकी संजीदा भारी आवाज़ पे इसके कदम ज़ंजीर हुए थे। माथे पर वजूद पर नरम-गरम लफ्ज़ फिर से जागने लगा था। हीर की आँखें नमी से झलकने लगी थी अपनी गैर होती हालत पर। "हीर, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना?" वो उसके सामने आता फ़िक्रमंदी से पूछ रहा था। वो मुतारिम फीकी पलकें उठाती इन्हें देखने लगी थी। इसकी गीली आँखें देखकर वो बुरी तरह चौंका था। "क्या हुआ? क्या पेन है कहीं?" वो परेशान होता हुआ पूछ रहा था। "नहीं," रोंदे गले से वो बमुश्किल बोल पाई थी। "तो फिर रो क्यों रही हो? कोई बिलावजह नहीं रोता हीर, इसलिए रोने की वजह बताओ। यूँ परेशान मत करो मुझे।" वो उसके कंधों को थामता हुआ परेशान हुआ था। "भूख लग रही है और सर पे भी दर्द है, इसलिए रोई हूँ।" बहुत ही मासूमाना लहज़ा था इसका, जिस पर वो हैरानगी से इसकी भीगी पलकों को देखता एक कदम पीछे हुआ था। "तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हीर, कोई काम कॉन्फिडेंस से भी किया करो। यूँ रोने से मसले हल होते तो सारी दुनिया रोने बैठ जाती। खबरदार आइंदा यूँ बिलावजह रोई तो।" वो अब कैसे सख्ती से डाँट रहा था। हीर लरज़ कर 2 कदम पीछे हुई थी। इसे डरते देखकर वो परेशानी थामता हुआ वहाँ से चला गया था। जबकि वो साकित वजह से काफ़ी देर वहीं ठहरी रही। इनका यूँ चले जाना इसे परेशान कर गया था। क्या ज़रूरत थी रोने की? वजह चाहिए बस इन आँसू को निकलने की। सख्ती से आँसू पोंछे उन पर गुस्सा भी होती हुई सामने कॉरिडोर के सिरे पर बनी बालकनी की जानिब बढ़ गई थी। सफ़ेद रंग के पे हाथ जमाए वो आसमान को तकने लगी थी। आज आसमान स्याह था, बादलों ने आसमान पर अंधेरा कर रखा था। कोई सितारा नज़र आ रहा था। ठंडी हवा जंगल की गहरी तारीकी वहाँ से आती। किसी जानवर की खौफनाक आवाज़ पर वो डर सी गई थी। कहीं कोई डायन या जिन ना हो। "मैं हूँ भी यहाँ, अकेली, भाग जा हीर यहाँ से।" जंगल को सहमी नज़रों से देखती वो पलटकर चीखी थी। एकदम से सामने खड़े वजूद को देखकर इसने बेसाख्ता हीर के होठों पर नरमी सी हथेली जमाई थी। हीर तंबिया करती आवाज़ इसके कँपकँपाते वजूद को साकित कर गई थी। वो अंधेरे में इन्हें देख नहीं सकी थी, इसलिए बेसाख्ती में डर सी गई थी। एक हाथ में ट्रे पकड़े, दूसरे से इसके सूजे होठों पर हथेली रखे अपने पूरे कद से खड़ा हीर को मबहूत कर गया था। "क्यों चीखी? डर गई थी क्या?" वो हथेली हटाता इसकी इसी हाथ से कलाई पकड़े साथ ले जाता हुआ नरमी से पूछ रहा था। "जी।" साथ चलती लड़की की फंसी सी आवाज़ निकली थी। "वो इसे अपने कमरे में ले आया था।" "बैठो।" इसे बैठने का इशारा करते ट्रे शीशे के चमकते टेबल पर रखता वो लाइट ऑन करने बढ़ा था। "बैठो और स्टार्ट करो।" वो खाने की तरफ इशारा कर रहा था। वो झुकी नज़रों से ट्रे का जायज़ा लेने लगी थी। चाय के 2 कप, एक तरफ छोटी सी प्लेट में स्पाइसी नूडल्स थे जो रात को मेहदिया ने बनाए थे, वो वही गर्म करके ले आया था। "ये ठंडे हो जाएंगे।" वो अपना कप उठाकर बालकनी में आ खड़ा हुआ था और उसे टोक भी दिया जो हाथ पर हाथ रख के साकत से बैठी थी।
इनके कमरे में फैली इनकी दिलफरेब महक इसे खाना खाने कहाँ दे रही थी। इसने पहली बार कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया था। उफ़! कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा था। सारा कमरा सफ़ेद था, हत्ता कि फ़र्नीचर भी सफ़ेद रंग से सजा बहुत नुमाया था। इस बड़े से कमरे में 2 शीशे के वॉल्स थे। कमरे को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया था। एक हिस्से में इसका बेड था, ड्रेसिंग टेबल था, 4 रंग-बिरंगी परफ्यूम्स का ढेर था। बेड पे लगे सफ़ेद कढ़ाई वाले रेशमी पर्दे बेड को चारों तरफ से कवर किए हुए थे। एक तरफ ऊपर को जाती सीढ़ियाँ जो सारी स्टील की थी, इन पर सफ़ेद पेंट था, रैंकिंग पे नन्हे कमकमे सजे हुए थे, शायद वो सीढ़ियाँ टेरेस पर जाती थीं। सफ़ेद लिली के फूल कमरे में जा-बजा गुलदानों में सजे हुए थे, जबकि दूसरे हिस्से में सफ़ेद सिल्क का सोफ़ा सीट पूरी दीवार जितनी कबर्ड जिसके दरवाजे सफ़ेद शीशे के साथ थे। दीवार पर महंगी नस्ब पेंटिंग्स और फिर इसकी नज़र एक जगह साकित हो गई थी, बल्कि ठहर सी गई थी। वो थी ग़ज़ान तैमूर के कॉलेज के दिनों की खूबसूरत इनलॉज तस्वीर। एक हाथ में गोल्ड मेडल तो दूसरे में सुनहरी चमक वाला लंबा सा कप, सुनहरी आंखों में बेइंतहा चमक थी, जैसे सारे जहाँ के सितारे इनमें कूट कर डाल दिए गए हों। गले में ब्लैक टाई, सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट में वो नौजवानी की तस्वीर थी, लेकिन बेमिसाल तस्वीर थी कि नज़र वो तस्वीर अपनी तरफ बांध लेती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया था। ये रूम पसंद आया क्या तुम्हें? तुम्हें भी ऐसा रूम बनवाना है? वो बड़े नरम लहजे में आम सी लड़की से मुखातिब था। हिट की तो क्या वो इसकी जायज़ा लेती नज़रों को पकड़ चुका था? जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा रूम चाहिए? उसे करीब आकर बैठता हुआ बोला था। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वो जल्दी से कहती नूडल्स का चम्मच मुँह में लगने लगी थी, लेकिन नूडल्स इसकी पकड़ से परा थे। वो मुँह में जाने की बजाय इसकी गोद में आ गिरे थे। हिरण ने बेसाख्ता इन्हें देखा, जबकि वो उसकी गोद में गिरे नूडल्स को देख रहा था। हीर जी भर शर्मिंदा हुई थी। वो खुद ही गिर गए, मैंने नहीं गिराए। वो हल्का-सा मिनमिनाई थी। आई नो इन्हें खाने के लिए इस चम्मच को यूज़ करते हैं और ऐसा करके मुँह में डाल दिए जाते हैं। वो फ़ोर्क को पकड़कर नूडल्स को इनके गिर लपेट के बड़े नरमी से कहकर इसके होठों के करीब कर गया था। हिरण ने दंग नज़रों से इसे देखा था, जबकि वो ज़हरीला मुस्कान सजाए फ़ोर्क को इसके होठों के नज़दीक मज़ीद नज़दीक कर गया था। हीर मुँह खोलो। इसके नरमी से कहने पर वो मुँह बेसाख्ता खुल गई थी और अब सर झुकाए मुँह हिला रही थी। हीर ये खाने के लिए दोबारा मुँह खोलो। वो इसे साकेत बैठा देखा, फिर से फ़ोर्क इसके होठों के नज़दीक कर गया था। हीर की नज़रें इसके सॉफ्ट मुलायम और मजबूत हाथों पे जम गई थी। वो बड़े प्यार से इसे खिला रहा था और वो खा रही थी, बिना कोई सवाल जवाब किए बस खाई जा रही थी, जबकि नज़रें इसके मुतहर्रिक हाथों पर थी। शाबाश गुड गर्ल, वो कहती हाथ नैपकिन से साफ करता वॉशरूम में चला गया था और वो जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए वहाँ से भागी थी। वो कमरे को इसके वजूद से खाली देखकर मुस्कुराया था। फिर दरवाज़ा हल्का-सा खोलकर लंबी सी राइडी पे नज़र जमाई थी, जहाँ वो तेज़ी से भागती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो चमकती आँखें लिए रूम में वापस आता, तमाम लाइट्स गुल करके अपने मिस्टर बैट की तरफ बढ़ा था। महल में सुबह सब जल्दी उठ जाया करते थे। सूरज निकलने से पहले यहाँ के लोग बिस्तर छोड़ देते थे। घर की ख़वातीन के ज़िम्मे बस किचन का काम होता था कि मर्द हज़रात को मुलाज़िमों के हाथों का बना खाना पसंद नहीं आता था। मुलाजिम अपना-अपना काम मुस्तैदी से सरअंजाम दे रहे थे। वो सीढ़ियों पे खड़ी तजब्बुब में थी कि नीचे जाए या नहीं। होठ की सूजन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो 2 दिन से अपने कमरे में ही थी। क़याम ने मिलने के लिए कहा, लेकिन इसने मना कर दिया, वो परेशान होगा। इसलिए स्टडी का बहाना बनाकर वो इसे टाल गई थी। मेहदिया का इसे बहुत सहारा था। वो कॉलेज से आकर कुछ वक़्त इसके पास बैठती थी, फिर वो सोती थी। इसके बाद किचन के छोटे-मोटे काम निपटा कर पढ़ाई, लेकिन रात को वो फिर इसके पास आ जाती तो आधे घंटे या 10-15 मिनट्स के लिए। वो बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। वो ग़रूर ज़रा नहीं था इसे। किसी बात का वो बोलती रहती और हीर बहुत तवज्जो से इसकी बेतुकी बातें सुनती रहती। सदाकतन कल से आउट ऑफ सिटी थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। इसने भारी पिलर के पीछे होते डाइनिंग टेबल पर नज़रें दौड़ाई थी, जहाँ सब बड़े खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। आज तो एक नए चेहरे का भी इजाफा था। डाइनिंग हॉल में वो था शामिर, शर्मीन का छोटा बेटा, जो रात को ही अबॉर्ड से वापस आया था। स्टडी कंप्लीट करके वो एक खुश शक्ल नौजवान था। लड़कियां भी जल्दी जल्दी नाश्ते का काम सर अंजाम दे रही थी कि इन्हें कॉलेज जो जाना था। वो गहरी सांस लेती अपने कमरे की तरफ चली गई। मुलाज़िमा इसका नाश्ता ले आई थी। नाश्ता रख के वो चली गई, तब वो नाश्ते की प्लेट को बेदिली से देखने लगी। चाय का कप, 2-3 स्लाइस, जैम की शीशी और साथ हाफ फ्राई अंडे था। इसे ये नाश्ता नहीं पसंद था। वो तो शुरू से ही सुबह सवेरे पराठा चाय के साथ खाते थे
और घी ना हो तो सूखा पराठा भी वो शौक से खाती थी। कभी कभी तो अम्मी नायला दही भी जमा लेती थी इन दोनों के लिए, जब कभी दूध बच जाता तो। इसे हकीकतन दही बहुत पसंद था, और पराठे के साथ मिल जाता तो उसकी मौज हो जाया करती थी। और यहाँ वो जब से आई थी, स्लाइस कच्चा पका अंडा जो इसे ज़रा पसंद नहीं था, वो मुंह बुसेरे दूर जा बैठी थी। वो आ क्यों नहीं रहे, परसों देखा था इन्हें और उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया मुझे। वो नए आए मोबाइल मोबाइल को देखती खफी से बड़बड़ाई थी। आंखें गीली होने लगी थी भूख और इनकी गैर मौजूदगी से। आप कब आएंगे? जब आप यहाँ होते हैं ना तो इसमें हल्की हवा भी अपनी लगती है, और जब आप नहीं होते तो ऐसा लगता है गैरों की भीड़ में कहीं गुम सी हो गई हूँ मैं। वो गीली आंखें बेदर्दी से पोंछती, खुद से हम कलाम थी। पीले रंग के सूट में जर्द चेहरा लिए वो परसों की बीमार लगती थी। बालों को शदीद कंघी भी नहीं की गई थी बालों को शायद कंघी भी नहीं की गई थी, जो वो उलझे उलझे से कंधों पर बिखरे पड़े थे। वो काफ़ी देर इधर उधर टहलती रही थी। टहलती रही। खाने में से चाय का कप खाली था, बाकी सब जू का तू पड़ा हुआ था। मुलाज़िमा बर्तन उठाकर ले गई थी, और वो मेडिसिन खाकर सोने के लिए लेट गई थी कि दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए वो आंखें मूंदे नींद के इंतज़ार में थी।